Dear children, myself is Harish Sir Bipul. Today we shall read about the chapter The Enemy. This is a long question and best example of learning. Yesterday we studied how a soldier of enemy country, America, reached at the shore of Japan and seen by Dr. Sadao and his wife. They carried the soldier at their home and the duel arose before them that what should be done with him. Should it be saved or not? इसको बचा लिया जाना चाहिए या ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? Such type of situation may arise before. And at that moment, you will have to take a decision. What would you do? Two options are there. Either you hear the voice of your soul, are compelled to do with the worldly pressure. या तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे, that is a natural justice, that is real and true, और या तो आप सांसारिक दबाव में उससे इतर कोई निर्णय ले लोगे. Now come to the para. Yes, Sadao said. सदाओ ने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि it may be possible that he would die with oppression. Hannah considered this doubtfully, and when she didn't answer, Sadao turned away. हना उसके जवाब को सुन करके उलझन में थी और जब किसी प्रकार का उत्तर न दी तो सदाओ थोड़ा सा उससे दूर हट गया. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. इस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए. किसी भी कीमत पे इस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए और सबसे पहले जरूरी बात है कि इसको साफ किया जाना चाहिए. जो धूल, कीचड़, भीगे हुए कपड़े उसके शरीर पर था उसको हटा करके साफ कर दिया जाना चाहिए. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया. उसकी पत्नी हाना भी उसके साथ साथ बाहर निकली. She didn't wish to left alone with the white man. वो अपने पति सदाओ को उस श्वेत व्यक्ति, उस श्वेत अमेरिकन के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. पहली दफा
अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद वो किसी अमेरिकन व्यक्ति को पहली बार देखी थी। एंड नाउ she seemed to have nothing to do with those whom she known there. और उन सारे लोगों के बारे में जिनको वो अमेरिका में जानती थी कुछ भी नहीं करना चाहती थी, ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती। Here he was her enemy. यहाँ वो श्वेत अमेरिकन उसका दुश्मन था। A meanness, living ardent, एक धमकी था, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। Now come to the next para. She turned to nursery and called you. वो बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और अपनी नौकरानी यूमी को पुकारा। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. बच्चे अपनी माँ की आवाज को सुने। हना जो है अपने बच्चों के साथ गई और छोटे बच्चे जिसकी उम्र तकरीबन 3 महीने की थी उसके साथ खेलने लगे। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." अपने नन्हे 3 महीने के नवजात शिशु के सर पर बाल पर हाथ फेरते हुए, अपने नन्हे 3 माह के बच्चे के सिर के बाल पर हाथ फेरते हुए उसने यूमी को पुकारा और कहा कि यूमी मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed. Yumi replied, "He is ready." यूमी ने जवाब दिया, मैडम मैं बच्चे को बिस्तर पे सुला दूंगी, वो सोने के लिए तैयार। She went with Yumi into the bedroom next to nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. वो बच्चे को गोद में लिए हुए बगल के बेडरूम में गई। यूमी ने फर्श पर रजाई बिछाई, गद्दा बिछाया और उसके बीचों बीच में उस 3 महीने के नवजात शिशु को लिटा दिया। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. तदुपरांत हना तेजी से रसोई घर की ओर बढ़ी। The 2 servants were frightened at what their masters had just told them. 2 नौकर अचंभित थे उस बात को लेकर के जो बात अभी अभी उनके मालिक ने उन दोनों नौकरों को बतलाई थी। The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lip. एक बूढ़ा मालिक जो उस परिवार का बहुत ही पुराना नौकर था, उलझन की स्थिति में अपने ऊपरी ओठ के बाल जो है खींच रहा था। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. उसने
रूखेपन से कहा। अपनी मालकिन हना से रूखी आवाज में कहा कि मालिक को इस दुश्मन श्वेत अमेरिकन सैनिक के घाव नहीं भरने चाहिए, उसके उपचार नहीं करने चाहिए। The white man ought to die. इस श्वेत अमेरिकन को मर जाना ही बेहतर है, इसे मर जाना ही चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो इसको गोली मारी गई। देन शी कॉट हिम एंड wounded him with a rock. आप देखो पर्सनिफिकेशन का कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। She has been personified here. मानवीकरण किया गया है। कहता है कि जापानी सैनिकों ने इस दुश्मन को गोली मारी, जब वो वहां से बच निकला तो हमारे देश के समुद्र ने इसको पकड़ लिया और अपनी नुकीली चट्टानों से इसको घायल कर दिया। If Master Hills that the gun did what the sea did, they will take revenge on us. If the Master Hills, जो काम बंदूक ने किया, जो काम समुद्र ने किया, अगर उनके किए गए कृत्य को, उनके द्वारा कारित किए गए घाव को हमारे मालिक भरने की कोशिश करते हैं, भरते हैं, तो ये उनसे जरूर बदला लेंगे, निश्चित तौर पे बदला लेंगे। I'll tell him what you say, Hannah replied curtly. हन्ना ने विनम्रता से जवाब दिया कि मैं आपकी बातों को आपके मालिक तक अवश्य पहुंचा दूंगी, निश्चित रूप से पहुंचा दूंगी। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. यद्यपि हन्ना अंधविश्वासी नहीं थी, अंधविश्वासी न होते हुए भी हन्ना उन नौकरों की बातों को सुन करके बुरी तरह भयभीत हो गई। Could it ever be well to help an enemy? सोचने लगी कि क्या दुश्मन की मदद करना एक अच्छी बात हो सकती थी। Nevertheless, she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was. बावजूद इसके, इतनी बात जानने के बाद भी उसने अपनी नौकरानी यूमी से पानी गर्म करने के लिए कहा और कहा कि पानी गर्म करके उस कमरे तक ले आओ जिसमें वो श्वेत अमेरिकन लिटाया गया था। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आ गया।